And here is the topic which is about the Ethernet switching. And Ethernet switching में आखिरी टॉपिक हमारा रहता था which is about the switching. ये स्पीड हमने ये पढ़ लिया था मैक एड्रेस टेबल लास्ट क्लास में, और आज हमने देखना था कि स्विच स्पीड एंड फॉरवर्डिंग मेथड क्या है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक एट द स्पीड, दो चीजें हैं, स्पीड अलग चीज है और फॉरवर्डिंग अलग चीज है. फॉरवर्डिंग इज द बेसिक टास्क ऑफ ए स्विच. तो लेट्स स्टार्ट. स्पीड तो आपको पता है कि डिपेंड अपॉन द हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी. अगर ये फास्ट इथरनेट है, सॉरी, अगर ये क्लासिकल इथरनेट है जिसको सिर्फ इथरनेट कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि ये 10 मेगाबिट पर सेकंड सपोर्ट करेगा. अगर ये फास्ट इथरनेट है तो ये 100 मेगाबिट पर सेकंड सपोर्ट करेगा. अगर ये गीगाबिट इथरनेट है तो ये 1 गीगाबिट पर सेकंड सपोर्ट करेगा. इवन गीगाबिट इथरनेट जो है वो 10 गीगाबिट पर सेकंड भी सपोर्ट करता है. तो स्पीड वाइज तो इसमें कोई इशू हमें नजर नहीं आ. इसका मतलब है कि जिस चीज को हम, और डेफिनेटली दिस स्पीड इज रिलेटिव टू दी फॉरवर्डिंग. जितनी फॉरवर्डिंग तेज होगी उतनी स्पीड हमें अच्छी मिलेगी. फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है? वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर दिस इज अवर स्विच and it has multiple interfaces, definitely it has multiple ports. At layer 2 we call them ports, so it has multiple ports. So ladies and gentlemen, if PC is connected here and that PC is sending its data or frames to port number 1, so basically this is the job of the switch to look at the frame and then find the this own MAC address table. And the MAC address table, it will find that, and basically हमने पढ़ा था कि that is not a RAM but a CAM. That's the reason the MAC address table is also known as a CAM table. So it will look at the CAM table and will find the destination MAC address here, destination MAC here, and the destination MAC address is mapped with the port number. That's the port number. So for example, if the port number of the destination is this one, so it will only be forwarded on this port. That is called forwarding. Now, we want to see that what are the methods of the forwarding which can be applicable or available in this Cisco switch. And there are two. Number one is the store and forward. Store and forward. And the second one is cut through. What is the difference between the two? What is the advantage and disadvantage of the two? Definitely we need to understand and we need to explain it. Okay, so ladies and gentlemen, what we found that for forwarding we have two mechanisms. One is called store and forward, and the other one is called cut through. So there are two methods. लेकिन बाज़ वक़्त मुझसे स्टूडेंट पूछ सकते हैं या पूछते हैं, सर में दो हैं तो दोनों में अच्छा कौन सा है? एंड माय सिंपल आंसर इज ऑलवेज कि अगर देयर आर मल्टीपल मेथड्स एंड ऑल आर एप्लीकेबल, इट मींस दैट none of them is bad. Basically each has its own pros and cons. हर एक के अपने advantages and disadvantages हैं. So looking at the advantage and disadvantage, you will be choosing which method is good for you, but it doesn't mean the other methods are bad. So, ladies and gentlemen, what mean by this store and forward? Store and forward का मतलब ये है कि अगर ये आपका स्विच है, ये आपका स्विच है, और लेट करें कि इसकी पोर्ट नंबर 1 पे इसको हमने PC 1 के जरिए डेटा यानी कि फ्रेम दिया, तो you must understand that this frame, may I call it frame 1, this frame 1 is, for example, of 1000 bytes. Now this 1000 bytes will be first stored in the switch. Then once stored, then it will be processed. And then the learning and forwarding, learning plus forwarding will be done. Learning plus forwarding will be accomplished.
So this is the such a one is known as store and forward. अब आपका क्वेश्चन है प्रोसेस में क्या करता है। आपने क्वेश्चन किया आपने कि भाई प्रोसेस में क्या करता है, तो प्रोसेस में ये करता है कि जब इसके पास आपको पता है कि जब ये फ्रेम यहाँ पे आएगा तो द फ्रेम विल हैव अ डेटा इन द सेंटर and it will have a header at the beginning and it will have a trailer at the end. It has a trailer at the end. So ladies and gentlemen, this trailer is used for CRC. It means which is also known as FCS, frame check sequence. और अगर मैं आपसे पूछूं कि CRC या फ्रेम चेक सीक्वेंस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, तो योर आंसर शुड बी इट इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन। तो जब तक ये पूरा का पूरा स्टोर नहीं होगा, पहला बाइट नंबर 1 इज ऑफ द हेडर एंड बाइट नंबर लास्ट इज ऑफ द ट्रेलर, तो जब तक ये पूरा का पूरा ये स्टोर नहीं होगा, इसको नहीं चेक किया जा सकता कि इट इज एरर्ड और इट इज एरर फ्री। मेरी बात समझ आ रही? जब तक ये पूरा नहीं सेव होता, पूरा ट्रेलर तक चीज नहीं आ जाती, तो इस स्विच को ये पता नहीं लग सकता कि ये एरर्ड है, ये एरर्ड है या एरर फ्री है, या एरर फ्री है। तो जब अगर ये एरर्ड है तो इट नीड टू बी ड्रॉप्ड, इट नीड टू बी ड्रॉप्ड। और अगर ये एरर फ्री है तो देन इट शुड बी प्रोसेस्ड, देन लर्निंग प्रोसेस शुड हैपन। देन लर्निंग के बाद इसकी फॉरवर्डिंग होनी चाहिए और इसको किसी एक पोर्ट के जरिए निकाल दिया जाएगा, एज आई एक्सप्लेन। सो दिस मेथड इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो लोग अभी आए हैं वो दोबारा से सुन लें कि मिसाल के तौर पे ये आपका PC1 है और ये बैठना चाहता है PC10 को, इज्यूम कर लेते हैं PC10 को। तब दो तरीके हैं। एक तरीके को हमने कहा है कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पहले अगर ये 1000 बाइट का फ्रेम है तो पूरे 1000 बाइट यहां पे स्टोर किए जाएंगे पहले, इनके साथ और कुछ नहीं किया जाएगा। आते जाएंगे खामोशी से इनको इकट्ठा किया जाएगा। जब ये इकट्ठा हो जाए तो फिर इसके ट्रेलर को प्रोसेस किया जाएगा और ट्रेलर की मदद से ये मालूम किया जाएगा कि ये डेटा जो है इज इट एरर्ड, यानी इसमें कोई खराबी है, कोई बिट फ्लिप्ड है या नहीं, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, एरर फ्री है, ये एरर फ्री है। अगर ये एरर फ्री है तो फिर इसके जरिए इसका सोर्स एड्रेस के जरिए जो कि हेडर में है, सोर्स एड्रेस की मदद लर्निंग की जाएगी और डेस्टिनेशन एड्रेस के जरिए उसकी फॉरवर्डिंग कर दी जाएगी। तो इस मैकेनिज्म ऑफ फॉरवर्डिंग इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग या स्टोर एंड फॉरवर्ड फॉरवर्डिंग। मेरी बात समझ आ रही? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो फायदा ये है कि कोई भी एरर्ड फ्रेम नहीं, अगर मिसाल के प्रोसेसिंग के जरिए पता चला कि ये एरर्ड है तो उसको खामोशी से ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा, उसको आगे नहीं भेजा जाएगा। और जब आगे नहीं भेजा जाएगा तो इसका मतलब है कि वो एरर, अगर वो एरर्ड है और वो आगे फिर भी जा रहा है तो फिर तो लाजमी तौर पे वो हमारी बैंडविड्थ इस्तेमाल कर रहा है। वो हमारी लाजमी तौर पे अगर मिसाल के पे स्विच नंबर 1 से स्विच नंबर 2 पे जा रहा है तो स्विच 1 के स्विच 2 के दरमियान जो बैंडविड्थ है वो इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि उसके बाद वो राउटर पे भी आगे जाता जाए और इसी तरह उसको आगे भेजता जाए तो लाजमी तौर पे वो एक एरर्ड फ्रेम हमारी बैंडविड्थ को खाएगा। लेकिन ये तो हो गया कि फायदा उसका कि भाई एरर नहीं जाएगा, लेकिन लाजमी तौर पे 1000 बाइट्स को पहले स्टोर करने में टाइम लगेगा और टाइम को हम क्या कहते हैं? लेटेंसी। लेटेंसी या लेटेंसी के अलावा हम उसको क्या कहते थे? डिले। इसका मतलब है कि इस मेथड में स्टोर एंड फॉरवर्ड का बुरी बात यह है कि स्लो है, इसमें लेटेंसी ज्यादा होगी। जब तक कि 1000 बाइट इसके पास इकट्ठे नहीं होते, यानी पूरा का पूरा फ्रेम आ नहीं जाता, ट्रेलर आ नहीं जाता, उस वक्त तक कोई इसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि भाई ट्रेलर ही नहीं है। ट्रेलर से पता चलेगा कि ये एरर्ड है या एरर्ड नहीं है।
बात समझ आ रही है? तो इसलिए ये इसका फायदा ये है कि एरर, जब आपकी बैंडविड्थ बचेगी, आपकी बैंडविड्थ जाया नहीं होगी। लेकिन नुकसान क्या है, कि खराबी क्या है, कि लाजमी तौर पे लेटेंसी इंक्रीज हो जाए, लेटेंसी इंक्रीज हो जाए। क्लियर होगी मेरी बात? अब सवाल ये है कि इसके मुकाबले में फिर ये जो कट थ्रू मेथड है ये क्या करता है? कट थ्रू मेथड ये करता है, कहता है मैं स्टोर नहीं करता, कहता है कि मैं स्टोर नहीं करता, सिर्फ कहता है कि जनाब आप मुझे पहले 6 बाइट्स मिसाल के तौर पे अनायत कर दो, सिर्फ 6 बाइट्स मुझे दे दो। पहले 6 बाइट्स में क्या होता है? डेस्टिनेशन का एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक। पहले 6 बाइट में क्या होता है? डेस्टिनेशन का मैक। तो डेस्टिनेशन के मैक से पता चल जाएगा, क्योंकि जो ही 6 बाइट पहुंचे, इसने ये अपने मैक टेबल को हवाले कर दिए। किसके हवाले कर दिए? मैक टेबल। और अगर मैं पूछूं इकरा से कि मैक टेबल में जब ये 6 बाइट जाएंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, इसका जवाब ये आएगा कि पता चल जाएगा। क्योंकि मैक टेबल में क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उसमें 2 चीजें होती हैं मैक टेबल में। एक तरफ मैक एड्रेसेस लिखे होते हैं और दूसरी तरफ पोर्ट नंबर लिखे होते हैं। तो जब ये डेस्टिनेशन एड्रेस आया तो हम यहाँ पे उसको सर्च कर लेंगे, और है भी एक कैम टेबल, यानी कि फास्ट टेबल, फास्ट मेमोरी। तो अगर मिसाल के तौर पे हमें पता चल जाता है कि भाई इस डेस्टिनेशन M1 है, तो M1 के अगेंस्ट जो पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, लेट इट बी पोर्ट नंबर 20, हमें पता चल गया कि इसको पोर्ट नंबर 20 से निकाल देना। अभी मेरे पास ये पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ 6 बाइट पहुंचे और मैंने डिसीजन ले लिया। 6 बाइट पहुंचे और मैंने डिसीजन ले लिया। अब इसका फायदा क्या होगा, कि जो ही यहां से लटकर ये पोर्ट नंबर 20 है, तो यहां से अभी आ रहा है, लेकिन साथ साथ स्टोर नहीं हो रहा, साथ साथ ही इसको हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। 6 बाइट पे डिसीजन हो गया, 6 बाइट पे डिसीजन हो गया। तो 6 के बाद जितनी भी बाइट्स आ रही हैं साथ साथ पीछे से आ रही हैं, और आगे हम उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जिससे क्या चीज इंप्रूव हो जाएगी? लेटेंसी इंप्रूव हो जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि अब पहले 1000 बाइट को स्टोर करना रिक्वायर्ड टाइम। तो अब आपने क्या किया, पहले 6 बाइट पे डिसीजन लिया और उसको आगे भेजना शुरू कर दिया। कुछ बात समझ आ रही है इकरा? एरर चेकिंग नहीं होगी, यही आपने सही जगह पे पकड़ लिया सवाल को, इस मेथड को, कि यहाँ पे एरर चेकिंग नहीं है। अब उसकी वजह, उसका तरीकाकार क्या है फिर दोनों में तरीकाकार में फर्क ये है कि मिसाल के तौर पे आपका डेटा सेंटर है। अब डेटा सेंटर में एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह पे बेशुमार बहुत से स्विचेस लगे हुए हैं। अब उसमें कोई इतना डिस्टेंस नहीं है। और दूसरा, आजकल के दौर में हम ऑप्टिकल फाइबर के जरिए स्विचेस को भी कनेक्ट करते हैं। तो इस केस में आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में तो एटेन्युएशन या एरर बहुत कम होता है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मिसाल के तौर पे 99.999% जो है वो ठीक आ रहे हैं। तो फिर ना भी चेक कर लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर यूसुफ ने क्वेश्चन ये किया कि अगर भाई इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, तो फिर ये 4 बाइट्स हटाना दें, आखिरी 4 बाइट जो कि ट्रेलर में है, ये हटा ही ना दें, क्योंकि जब हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। क्या ख्याल है अब्दुल्ला? एंड डिवाइस तो फिर भी इस्तेमाल करेगा, वो अपनी एप्लीकेशन को देने से पहले ये चेक करेगा क्या वाकई ये बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक है तो फिर तो वो अपनी एप्लीकेशन को दे देगा, और अगर नहीं है तो एंड डिवाइस के ऊपर, यानी कि आपके राउटर के, आप सॉरी, आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके पीसी के ऊपर उस पैकेट को गिरा दिया जाएगा। और फिर भी गलत बुरा डेटा जो है वो एप्लीकेशन के हवाले नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई खराब डेटा है तो उसने आपकी बैंडविड्थ को इस्तेमाल डेफिनेटली कर लिया। लेकिन जैसे हमने कहा कि चांसेस जो है वो बड़े ज्यादा ये हैं कि अच्छा पहुंचेगा। जब अच्छा पहुंचता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी डिवाइस भी कहेगा सब अच्छा है,
तो यूं चीजें क्या हो गई, फास्ट हो। अब बात क्लियर हुई। तो दो तरीके हमने क्या क्या पढ़े, एक हमने पढ़ा स्टोर एंड फॉरवर्ड, और दूसरा हमने पढ़ा कट थ्रू स्विचिंग। अब इस कट थ्रू स्विचिंग के आगे फिर दो तरीके हैं। इस कट थ्रू स्विचिंग में आगे फिर दो तरीके हैं। क्या जी, कट थ्रू में दो तरीके हैं। ये जी कट थ्रू में दो तरीके, एक को कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग। क्या कहते हैं? और ये कट थ्रू स्विचिंग और फास्ट फॉरवर्ड थ्रू स्विचिंग इज सेम। यानी जो कट थ्रू स्विचिंग अभी हमने पढ़ी है, ये कट थ्रू और ये फास्ट फॉरवर्ड एक ही चीज है, बस नाम इसके अंदर क्योंकि दो किए गए तो कहा गया कि एक इसमें फास्ट फॉरवर्ड है, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, और दूसरा है फ्रेगमेंट फ्री। फ्रेगमेंट फ्री। दोनों में फर्क क्या है? ये तो वही तरीका जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि आपके हेडर में, अगर आपको इथरनेट का हेडर याद हो, तो मैंने बताया था कि पहले 6 बाइट्स में डेस्टिनेशन का है मैक एड्रेस, अगले 6 बाइट्स में सोर्स का मैक एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस, इस 12 के बाद फिर टाइप या लेंथ, और फिर उसके बाद डेटा, और फिर डेटा के बाद ट्रेलर, FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां के मुताबिक अगर हम देखें तो पहले, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि पहले 6 बाइट्स पे ये फैसला किया जा सकता है कि डेस्टिनेशन क्या है, और 6 बाइट्स को उठा के हम मैक टेबल में ले जाएं, जिसको कैम टेबल भी कहते हैं, तो वहां से पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन किस पोर्ट पे है, डेस्टिनेशन किस पोर्ट, स्विच की किस पोर्ट पे है। नहीं समझ आ रही तो बात करें। जी यूसफ, डेस्टिनेशन है स्विच के, अगर इस पोर्ट से आई है तो किस पोर्ट से निकलना है। ठीक हो गया जी। तो अगर ये पता चल जाए तो बस 6 बाइट्स के बाद हम जो भी चीजें आ रही होंगी, हम वो 6 बाइट भी और अगले जितने भी बाइट्स हैं, चाहे वो 500 हैं, चाहे वो 700 हैं, चाहे वो 1000 हैं, क्योंकि फ्रेम का साइज वेरिएबल होता है, तो वो सारे के सारे इधर से आ रहे हैं और साइमल्टेनियसली इधर से जा रहे हैं। तो दिस मेथड ऑफ कट थ्रू also known as फास्ट फॉरवर्डिंग। क्या कहते हैं? फास्ट फॉरवर्डिंग एज वेल, तो इसका दूसरा नाम रख दिया गया। फिर जनाब ये मेथड जो कि फ्रेगमेंट फ्री कहलाता है, इसमें क्या फर्क है? ठीक है, वही खामी जो कि कट थ्रू की है, कि अगर एरर को फ्रेम हुआ तो आखिरी डिवाइस में जाके पता चलेगा, बाकियों पे इंटरमीडिएट डिवाइसेस उससे गुजर जाएगा। तो जनाब फ्रेगमेंट फ्री क्या है? फ्रेगमेंट फ्री ये है जेंटलमैन कि अगर हमारा जो फ्रेम है, इसका ईथरनेट का फ्रेम, हमारा फ्रेम से मुराद ईथरनेट टेक्नोलॉजी का फ्रेम, यानी जो इन स्विचेस के जरिए फ्रेम जाते हैं, या जो हमारा NIC ईथरनेट का, NIC जो फ्रेम बनाता है उसे हम कहते हैं ईथरनेट फ्रेम। तो ये ईथरनेट फ्रेम के पहले लाजमी तौर पे इट हैज सम मिनिमम वैल्यू एंड इट हैज सम मैक्सिमम वैल्यू। द मिनिमम वैल्यू इज 46 बाइट्स। हाउ मेनी? 46 बाइट्स। और मैक्सिमम इज 1500 बाइट्स। अगर मैं इस 46 बाइट्स में 18 बाइट्स ऐड कर दूं, जो कि हेडर है, हमने पढ़ा ना कि हमारा 14 बाइट्स का हेडर होता है और 4 बाइट्स का ट्रेलर होता है, टोटल कितने हो गए? 18। तो अगर इसको आप सम अप कर लें तो 8 + 6 इज 4, एंड दिस इज 64, एंड दिस इज 1518। तो अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि मिनिमम लेंथ, हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिसीजन एट 6 बाइट्स, नाउ वी आर वेटिंग फॉर 64 बाइट्स। कितना? 64 बाइट्स। इसका मतलब है कि अगर ये 64 बाइट्स
तक है, ठीक है, 64 बाइट्स हैं, मैं नहीं कह रहा ठीक है गलत है, 64 बाइट्स हैं, तो कम से कम लेंथ की जो वो है कसौटी, उससे गुजर गया। जो मिनिमम लेंथ की वैल्यू है, कम से कम इसमें वो मिनिमम लेंथ मौजूद है, इसमें वो मिनिमम लेंथ मौजूद है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप कहेंगे इससे क्या पता चलेगा? क्योंकि जब भी कोई कोलिजन होती है, तो वो कोलिजन जब होती है गाड़ियों की, आप एग्जांपल ले लें, तो उनकी बिल्कुल पहले ही चंद सेकंड के मोमेंट पे कोलिजन आ जाती है, और पहले ही चंद टाइम में अगर कोलिजन आती है तो पहली चंद बाइट्स करप्ट हो जाएंगी। जब करप्ट हो जाएंगी तो वो अपना फर्दर फ्रेम नहीं भेजेगा। अब उसको पता चल गया, हमने पढ़ा था ना सीएसए में, सीडी में, कि जो ही आपको पता चले कि भाई हमारा कोलिजन हो गया है, तो आपने स्टॉप कर देना है और जैमिंग सिग्नल भेज देना है कि भाई कोलिजन हो गई है नेटवर्क पे। तो उसका लेंथ लाजमी तौर पे 46 से कम होगा। तो जब 46 से कम होगा तो पता चलेगा कि वो किसी दो दो फ्रेम के टकराने से पैदा हुआ कोई फ्रेम है, जिसको हम कहते हैं रंट फ्रेम। क्या कहते हैं? रंट फ्रेम। तो कम से कम अगर वो 64 तक है, तो इसका मतलब वो रंट नहीं है। इसका मतलब ये कोलिजन, इसकी इसे कोलिजन की पैदावार नहीं है, ये कोलिजन की पैदावार नहीं है। तो कम से कम इस मेथड को कहते हैं कि भाई दिस इज दी फ्रैगमेंट फ्री स्विचिंग, कि हम ना 6 पे, ना हम 1500 पूरे को रिसीव करके डिसीजन लेते हैं, ना हम 6 बाइट पे में लेते हैं। हमने दरमियान में एक वैल्यू चूज की कि भाई यहां पे ज्यादातर जो एरर के वजह हो सकती है, वो हो सकती है कि रन फ्रेम, रन फ्रेम अगर होगा तो उसकी साइज 46 बाइट से कम होगा, कि 46 प्लस 18 उस पर लगेगा तो 64 से कम होगा। तो अगर आप 64 बाइट तक खामोशी से उसको स्टोर करें, अगर 64 बाइट आपके पूरे हो गए, इसका मतलब है कि ये कोलिजन फ्री है, ये कोलिजन की पैदावार नहीं है, इट हैज नॉट बीन इन द नेटवर्क बिकॉज ऑफ द कोलिजन। इसका मतलब बाकी हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जा रहा है, हमारे स्विचेस के थ्रू जा रहा है, हमारे इंटरमीडिएट डिवाइसेस के थ्रू जा रहा है, इस यहाँ पे कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, जाने दो, डोंट स्टोर इट फॉर एवर। जाहिर ही देखता है उसको, वही जो उसका आखिरी जो 4 बाइट्स हैं, वो आखिरी नोड एंड डिवाइस होगा एंड पे, वो इस्तेमाल करेगा इस आपके ट्रेलर को, एफसीएस को, फ्रेम चेक सीक्वेंस को। बाकी हमने जैसे अपने अब लफ्ज इस्तेमाल किया जाहिरी, हाँ जाहिरी देखता है कि 64 बोर्ड 64 से ज्यादा है, 64 है या 64 से ज्यादा है, इसका मतलब 64 से ज्यादा है, तो देर इज प्रोबेबिलिटी के, ये प्रोबेबिलिटी क्या, कंफर्म दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कोलिजन। कोलिजन से नहीं हुआ हुआ तो कम से कम एक मेजर जो एरर की वजह है वो नहीं हुई, नहीं हुई तो जाने दो। इसको कहते हैं फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। नहीं समझ आ रही तो बात करो। आज स्टूडेंट कम हैं क्योंकि हमारे यूनिटी में, ओके, हाउ इज इट, यूनस खान, राजीव कुमार, मोहम्मद सुदेश, मोहम्मद हिशाम खान। ओके, तो आपकी तरफ से अगर कोई कमेंट नहीं है तो देन आई कैन प्रोसीड। ओके जी, डायग्रामेटिकली रिपीट कर दें, कर देते हैं जनाब। हमने कहा कि ये फ्रेगमेंट फ्री का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे अगर ये PC1 है, विच इज द सोर्स, और ये PC10 है, इज्यूम टू बी द डेस्टिनेशन, हो सकता है, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब क्या हुआ कि इस फ्रेगमेंट फ्री में इसने, अगर ये होता स्टोर एंड फॉरवर्ड, तो पूरा का पूरा फ्रेम यहां पे पहले स्टोर होना था, पूरा का पूरा फ्रेम यहां पे स्टोर होना था, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टोर करने में टाइम लगता है, लेटेंसी आती है। हमने कहा कि नहीं, हम तो 6 बाइट पे भी डिसीजन ले सकते हैं, तो अगर हम इसके 6 बाइट्स पे डिसीजन ले लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन कौन है। लेकिन 6 में
चांसेस ये हैं कि हो सकता है वो एरर हो, तो फिर वो एरर आइटम हमारे इस पूरे प्रोसेसिंग ऑफ दी स्विचेस को भी और बैंडविड्थ को भी कंज्यूम करें। हमने इस मेथड को, जो 6 बाइट पे हमने डिसीजन लिया, हमने सिर्फ 6 बाइट स्टोर किए, 6 बाइट्स को हमने मैक को दिए, मैक टेबल को दिए, और इस मैक टेबल से हमने निकाल लिया कि डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, और उस पर हमने भेज दिया 6 बाइट के बेस पे। इसके मतलब इधर पीछे से PC1 से चीजें अभी आ ही रही हैं, तो PC10 की तरफ जा भी रही, इसलिए हम कहते हैं ये फास्ट है, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा। लेकिन हमने कहा फिर भी हमें डर है कि एरर हो सकता है, तो हमें एक और तरीका बताया गया कि आप 6 बाइट पे डिसीजन ना लें, बल्कि यहां पे आप 64 बाइट्स को, 64 बाइट्स तो आने दो, कम से कम 64। अगर 64 बाइट हो जाए, हम तो और फिर आएंगे, हो सकता है आए, तो मिनिमम जो लेंथ है वो पूरा हो गया है। मिनिमम लेंथ जो एक फ्रेम का होना चाहिए वो कम से कम है। इसका मतलब है कि ये 46 से कम नहीं है, मिनिमम से कम नहीं है। और मिनिमम से कम कब होता है? जो मैंने बताया कि जब दो फ्रेम आपस में कोलाइड कर जाएं, तो लाजमी तौर पे हो सकता है इसने भी 5 बाइट भेजे हो, इसने 10 बाइट भेजे हो, 15 बाइट यहाँ पे आपको नजर आएंगे, विच इज नॉट ऑफ दी, बिकॉज विच इज डेफिनेटली एरर। इसका मतलब है कि ये 64 हो जाता, तो फिर ये दूसरा वाला सुन लेता कि भाई यहाँ पे कोई और भेज रहा है, तो ये कभी भी ना बेचता, ये कभी भी ना बेचता। इसलिए कम से कम इस कोलिजन के, जब ये 64 से ज्यादा हो जाता है इसाम, तो ये पता चल जाता है कि कम से कम कोलिजन नहीं हुई। जब कोलिजन नहीं हुई तो हमने कहा मीडिया वगैरह भी इतना लॉस वो नहीं देते, एरर नहीं देते, तो प्रोबेबिलिटी हाई है, बहुत हाई है कि इसको जाने दो, ये एरर में नहीं। अब समझ आ गई इसाम को? मोहम्मद इसाम का क्वेश्चन था ये। जी जारा। क्लियर आइज। तो हमें ये दोनों मेथड समझ आ गए कि स्टोर एंड फॉरवर्ड और कट थ्रू, तो फिर कट थ्रू में फास्ट फॉरवर्ड और फ्रेगमेंट फ्री, तो हमें ये सारी चीजें हमने देख ली। ये शाम कहते हैं क्लियर है, नाइस। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके जारा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कॉल्ड मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी memory, and temporary memory is known as, in the computer world we call it buffer। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी होती है, उसे क्या कहते हैं? बफर। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है, ये समझाने के लिए कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये मेरा स्विच है, तो जब यहां पे कोई भी पैकेट या फ्रेम आता है इस पोर्ट पे, तो वो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो यहाँ पे हो सकता है कि स्टोर हो, तो कहाँ पे स्टोर होगा? बफर में स्टोर होगा, क्योंकि टेम्परेरी है, परमानेंट तो नहीं है। कोई हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आप सेव करते जाओ, पूरी नेटवर्क की ट्रैफिक यहाँ सेव करते जाओ। नहीं, बस जू ही हमें पता चला कि भाई ये आगे चला गया, हमने बफर किसी और के हवाले कर दिया। तो बफर का क्या मतलब होता है? बफर का क्या मतलब होता है? टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है ना जी? बफर का क्या मतलब होता है? टेम्परेरी मेमोरी। अब क्वेश्चन ये है कि हम स्विचेस में, जी क्वेश्चन प्रॉब्ली। आंसर, स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड में ये पॉसिबल है कि जो स्विचेस इस मेथड पे काम करते हों, तो वो इस कंडीशन में डेस्टिनेशन एड्रेस एंटेल फर्स्ट सेंड हो। हाँ,
वो कहना चाहते हैं कि जनाब क्वेश्चन मजेदार है, जवाब हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही दे सकता है। ये तो हमारे का बस का काम ही नहीं है, क्योंकि तो ये तो सॉफ्टवेयर को चैलेंज कर दिया, सॉफ्टवेयर को चैलेंज कर दिया अजलान शाह ने। कहता है कि सर, स्टोर एंड फॉरवर्ड में ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि जो स्विचेस स्टोर एंड फॉरवर्ड से काम करते हो तो वो इस कंडीशन में डेस्टिनेशन एड्रेस एंड टेल फर्स्ट सेंड हो, और देन उसके बाद पे फास्ट फॉरवर्ड भी हो, और कंटिन्यूसली एरर चेक भी हो। तो जनाब, अगर ये मुमकिन होता अजलान तो जरूर कर लिया जाता, लाजमी तौर पे ये मुमकिन नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि जब डिवाइस, मिसाल के तौर पे ये आपका पीसी है, ये आपका पीसी है, तो जब ये अपना डेटा भेजता है, फ्रेम बनाता है, तो लाजमी तौर पे सबसे पहले तो ये देखता है कि भाई किसको भेजना है, तो डेस्टिनेशन बैक हो जाता है। फिर लाजमी तौर पे बताना चाहता है कि मैं कौन हूं, तो सोर्स बैक लगा देता है। फिर उसके बाद लाजमी तौर पे बस इसको जिसने ऊपर से डेटा दिया है उसकी टाइप लगाता है कि IPv4 ने दिया है, IPv6 ने दिया है, CMP ने दिया है। तो ये 18 बाइट्स जरूरी हो गए, 14 बाइट सॉरी, ये 14 बाइट्स जरूरी हो गए। फिर उसके बाद फिर उसके बाद डेटा आपका आता है, तो इस डेटा को मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए ये डेटा आ गया। अब क्वेश्चन आपने ये किया अजलान कि पहले ये भेजे डेटा, सॉरी डेस्टिनेशन, स्विच को स्विच को पहले ये दे, तो इससे पता चल जाएगा डेस्टिनेशन कौन है। फिर आपने कहा कि ये डेटा, उसके बाद ये उसके डेटा के बाद ट्रेलर ट्रेलर जो है ये दे दिया जाए। तो भाई ट्रेलर तो उस वक्त बनता है जब डेटा आता है, जब डेटा ही नहीं है, डेटा के ऊपर ही तो एरर, जो हमारे एल्गोरिथम है वो अप्लाई होता है, और उससे ये 32 बिट्स जनरेट होते हैं जिनको हम रिडंडेंट बिट्स कहते हैं। तो जब तक डेटा नहीं है तो ये है ही नहीं, ट्रेलर है ही नहीं, इसलिए ट्रेलर भेजा नहीं जा सकता, इसलिए ट्रेलर इकरा नहीं भेजा जा सकता। क्योंकि जब ये चीजें पूरी हो जाती हैं, मतलब आप यूं कह रहे हो कि भाई घर को सिक्योर करना है, तो हमने कहा जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे ताला नहीं लगा सकते। तो आप कहते हो घर से निकलने से पहले ताला लगा लो, तो भाई ताला नहीं लग सकता जब तक हम घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो जब तक ये डेटा, चाहे वो 1500 बाइट है, चाहे वो 1000 बाइट है, जब तक कि वो पहुंचा नहीं है, तो उसका ट्रेलर, उसका उस पर CRC एल्गोरिथम अप्लाई नहीं हो सकता, उस पर CRC एल्गोरिथम अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसलिए नहीं भेजा जा सकता। तो इसलिए दोनों काम, जैसे कि आपने सोचा कि भाई स्टोर एंड फॉरवर्ड भी चले और उसके दौरान मुझे ट्रेलर भी मिल जाए, मैं चेक भी कर लूँ कि जी ठीक है, फिर मैं साथ साथ भेजना भी शुरू कर दूं, तो सम एक्सटेंट फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्डिंग भी हो जाएगा, तो रिटेंसी भी कम हो जाएगी, बात तो अच्छी है, और एरर भी नहीं होगा, बात बहुत जबरदस्त अच्छी हो गई, लेकिन मुमकिन नहीं। यू गॉट द आंसर अजलान? सवाल ये यूसुफ 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 का था, जो सॉफ्टवेयर वालों, सॉफ्टवेयर का मसला था ना। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बी बैक ऑन योर टॉपिक। और टॉपिक ये कहता है कि जी हम पढ़ना चाहते हैं टेम्पररी मेमोरी विच मीन बफरिंग इन द स्विच। भी हमने देखा है कि भाई चाहे वो फुल फ्रेम बफर करे, चाहे वो 6 बाइट बफर करे, चाहे वो 64 बाइट बफर करे, बफरिंग करनी है।
और बफरिंग आपने बताया किसे कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी को। यानी किसी एक फ्रेम का या किसी एक उसका इसकी मलकियत नहीं है, बस वहां हर कोई टेम्पररी लेता है, जैसे होटल होता है। अब आपका घर परमानेंट है और होटल क्या होता है, टेम्पररी होता है। आप एक रात वहां गुजारते हैं और अगली रात को सुबह उठ के चले जाते हैं, उसके बाद अगला बंदा आ जाता है, वो उसी कमरे में बैठ जाता है, तो वो भी लाइक बफरिंग है कह लो। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम ये इसका आप देखना चाहें कि बफरिंग हो कैसे सकती है, बफरिंग हो कैसे सकती है, तो दो तरीके हैं। एक को कहते हैं पोर्ट बेस्ड मेमोरी। जी, ये क्वेश्चन प्रॉब्लली फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट। Switch have RAM, then why buffering? सर ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई स्विच के पास रैम है तो फिर बफरिंग क्यों करता है। तो उसके दो जवाब है। पहला जवाब तो ये है कि रैम आपके पूरे स्विच के लिए है। अब आपने, क्योंकि आपने स्टोर कहाँ करना है, आपने करना है पोर्ट के ऊपर। इसके मतलब हर पोर्ट के ऊपर आपने एक बफर का एक और क्वालिटी होती है, ये फास्ट होता है, बफर इज फास्ट। तो हमें इसमें कोई शक नहीं कि रैम तो वह है, जब प्रोसेस किया जाएगा पूरा का पूरा फ्रेम वहां पे रखा जाएगा वगैरह, लेकिन जब वो आ रहा है तो उस वक्त उसको एक टेम्पररी मेमोरी चाहिए। यानी ये मिसाल के तौर पे अगर ये आपका स्विच है और ये इसकी एक पोर्ट है, तो अब पैकेट यहां पे आपने सबसे पहले इस पोर्ट पे सेव करना है। फिर उसके बाद आपने डेफिनेटली रैम को हवाले करेंगे, रैम में जाएगा, रैम के में वो स्टोर होगा पूरा का पूरा, वहां पे वो प्रोसेस होगा, प्रोसेसर उस पर काम करेगा, लेकिन इनिशियली इट नीड टू बी स्टोर्ड इन दी एट द पोर्ट। और नंबर टू, जिस पोर्ट से उसने जाना निकलना है, जिस पोर्ट से उसने निकलना है, लेट करें वो ये पोर्ट है, तो जब यहां पे डिसीजन हो जाएगा कि इसने इस पोर्ट से जाना है, तो इस पोर्ट में भी इसको टेम्पररी रख दिया जाएगा कि इसके बाद इसने इसने इस मीडिया पे चला जाना है। तो ये मेमोरी लाने तो रैम बड़ी होती है। आप कहेंगे पूरी रैम को फास्ट क्यों नहीं कर लगा लेते हो, तो स्विच महंगा हो जाएगा। जिस तरह आपका कंप्यूटर है, वहां पर भी ये बफर्स होते हैं, लेकिन साथ रैम भी तो है। अब वो बफर किसी से बने हैं, मे बी दे आर मेड ऑफ द रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स महंगे हैं, जो रजिस्टर्स लगते हैं आपकी चिप पे, दे आर महंगे, दे आर एक्सपेंसिव। तो अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर एक कंप्यूटर जो है वो लेट करें 50 लाख का हो जाए, आई डोंट केयर, तो क्या, दैट विल बी गुड आंसर देन। लेकिन एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड 5 मिलियन। तो इसलिए आपने इंजीनियरिंग, स्पेशली डिजाइन और इंजीनियरिंग इज अबाउट टू थिंग्स, गुड परफॉर्मेंस, बट it should be, it must be cheap as well, it should be economical as well। जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं कि आज के दौर में माशाल्लाह हमारे तमाम स्टूडेंट जो भी कंप्यूटर साइंस या साइबर सिक्योरिटी या इंजीनियरिंग साइड पे या साइबर सिक्योरिटी उस पे आते हैं, सॉफ्टवेयर साइड पे, उनके पास लैपटॉप मौजूद है। बल्कि एफएससी के दौरान ही उन्होंने खरीद लिया होता है कि जनाब नहीं मैं एफसीएस कर रहा हूं। तो इसका मतलब आजकल तो इवन आप उनसे भी छोटे बच्चों को आप हवाले करते हैं कि लोग पकड़ो और इस पे काम करो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर यही कंप्यूटर, यही लैपटॉप अगर लेट करेंगे 10 मिलियन का कर दिया जाए, तो फिर हर पेरेंट्स कहेगा ना बच्चे इस मशीन को हाथ मत लगाओ, ये काफरों की मशीन है, उसको हाथ लगाने से जन्नत में जगह कम हो जाएगी। असल वजह वो नहीं होगी, वजह होगी उसकी एक्सपेंसिव हो गया है। अब कौन 10 मिलियन दे एक मशीन के लिए, घर में 5 बच्चे हैं तो इसका मतलब 5 करोड़ रुपया दिया जाए, नामुमकिन है। उससे उनको 5 करोड़ का बिजनेस क्यों ना डाल के दिया जाए कि वो सारी जिंदगी आराम से करें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिस कि यू हैव टू टेक केयर कि जनाब हमें बाद जगहों पे अगर हमें फास्टनेस चाहिए
तो हमने एक शॉर्ट मेमोरी लगा दी और उसको हमने कह दिया बस ये हमारा बफर है। रैम हमारा हिसाब, रैम है हमारी अलग है, रोम अलग है हमारी। इस तरह हमारे स्विचेस में भी अगर आपने देखा हो तो हम कह रहे थे ये रैम है। तो रैम इज देयर, उसमें कोई शक नहीं है। वहां पे आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, वहां पे आपकी जो एनवी रैम है वहां पे आपको पता है कि आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है। लेकिन ये टेम्पररी जो आप डेटा का रखना चाहते हैं, दैट इज थ्रू ए फास्ट मेमोरी विच इज कॉल्ड बफर। डू यू गॉट द आंसर यूनुस खान? ओके नाइस। तो मैंने कहा कि जी एक तरीका तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई आपका किस बेस पे मेमोरी, इसको मेमोरी को यूज करें कि भाई हर पोर्ट की अपनी अपनी मेमोरी। और फर्दर मोर इस मेमोरी को आप दो हिस्सों में तोड़ दें। बेहतर है कि आप इस मेमोरी को दो हिस्सों में, क्योंकि यहां से डेटा जाता भी है और यहां पे डेटा आता भी है। इसका मतलब है कि आप अपने इस बफर को दो हिस्सों में तोड़ दें कि ये मेरा इनपुट बफर है और ये मेरा आउटपुट बफर है। यानी यहां से डेटा पोर्ट की तरफ जाएगा और जो पोर्ट से, जो डिवाइस से डेटा आ रहा है पोर्ट पे, वो इस बफर में स्टोर हो। तो इसको हम कहते हैं पोर्ट बेस्ड मेमोरी। क्या कहते हैं? पोर्ट बेस्ड। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है ना जी, आसान सी बातें हमने की। जनाब, हमें एक सवाल भी मिल गया। Secondly, if the switch RAM buffer get completely full during high congestion, does the switch automatically drop incoming frames, or does it uses a mechanism like flow control to tell the sending device to slow down? ओके, सबसे पहले तो स्विच में फ्लो कंट्रोल का एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी, पहले तो स्विच में ही फ्लो कंट्रोल होता है राउटर पे, लेयर 3 पे। ओके, बल्कि लेयर 3 पे भी नहीं कहूंगा, लेयर 4 पे होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, हम पढ़ेंगे। वहां पे हम फ्लो कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस किस्म की कोई चीज स्विच में नहीं है। नंबर टू, आपने जब भी आप कोई डिवाइस बनाते हैं जेंटलमैन, तो स्पेशली मिसाल के तौर पे आज मैं एक राउटर को इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो बनाने वाले को पता है कि इसमें कितने आएंगे और कितने एग्जिट होंगे और कितनी ये प्रोसेसिंग करेगा। उस बेस के ऊपर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सिस्ट कोई भी एप्लीकेशन लेते हैं, वो आपसे, चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे इफ आई शो यू हेयर, तो देखिए ये मशीन बता रही है कि जी इसको इस काली को 4 GB की रैम चाहिए। इसी तरह अगर मैं इसको मिटा दूं, रब कर दूं, तो आपको ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये पता पूछ कह रहा है कि जी मुझे दो प्रोसेसर की जरूरत है, कम से कम दो प्रोसेसर। मुझे कम से कम जो है 80 GB की रैम हार्ड डिस्क चाहिए। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर मैं दूसरे डिवाइस को क्लिक कर दूं, मैं दूसरे डिवाइस को, युबंटू को, ये काली है, ये युबंटू है। युबंटू शायद मैंने बंद नहीं किया हुआ इसलिए ये ऑन है। चले हम इस ऑन वाले को नहीं देखते, हम इसको देख लेते हैं। देखिए भी कह रहा है मुझे 4 GB की रैम चाहिए। मैंने उसको 313 GB की हार्ड डिस्क दी हुई है। मेरी मर्जी। फिर इसके बाद, नहीं मेरी मर्जी नहीं, उसकी एप्लीकेशन की मर्जी है जो उस पर चलनी है। इसी तरह अगर मैं आपको विंडो 10 बताऊं, तो ये देख लो, ये भी कह रहा है कि जी मुझे 4 प्रोसेसर चाहिए, मुझे 4 GB रैम चाहिए, मुझे 100 GB की हार्ड डिस्क चाहिए। इस तरह का मैं विंडोज सर्वर को दिखाऊं तो देखिए कह रहा है 4 GB 2 प्रोसेसर। तो दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि भाई इस डिवाइस ने इस तरह काम करना है। और अगर वो उससे ज्यादा पे जा रही है, तो लाजमी तौर पे और तो ऑप्शन है नहीं। पैकेट जो होंगे वो, सिर्फ रैम के अंदर आपके पैकेट नहीं जाते, बाजू को तो पैकेट जाते ही नहीं है, वहां पे तो आपकी कमांड्स जाती है। तो सिस्टम जो है नॉर्मली हैंग कर जाएगा। जिसे आपने कई दफा देखा भी होगा कि जब आप कोई हैवी मशीन उस पे, क्योंकि हम अपनी मशीनों पे को ऊपर बाजू का जुल्म भी करते हैं। अब हमारे पास मिसाल पे कोर i3 है और हमारे पास सारी 4 GB की रैम है, और हम उसके ऊपर लेट करो मैटलैब इंस्टॉल कर डालते हैं,
और मैटलैब भी 2021 की करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होती। क्योंकि वो जब इस रैम को पहले वो आपको कहता है कि जी रैम आपकी मिनिमम लेट करो 16 GB, आपके पास है ही नहीं, तो इट विल नॉट इट विल नेवर बी इंस्टॉल्ड इवन, क्योंकि वो चेक करेगा कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, यू आर नो मोर अथोराइज टू यूज इट। यू गॉट द आंसर यूनुस खान? हमें नहीं पता एजी कौन है, अगर अपना नाम बता दे तो आपको आपके प्रॉपर नाम से बुलाया जा सकता है। ओके नाइस। इज इट क्लियर टू यू राजीव? डज इट मेक सेंस? Okay, so here is in the chat. All right, that's great. So that method which I explained, जिसमें every port has its own input buffer, where I write, sorry, input buffer and output buffer. I for input buffer and O for output buffer. And here is the port. Here is the port where data can go in and can go out. Okay, this is called port-based memory. Now, what is the disadvantage of this method? For example, if this packet has to go to another, definitely has to go to another port, which also has an input and output. So this output will be connected to the input here, and then it will go to the, sorry, it will go to the out. It will go to the out, and through the out it will go to the port. ऐसा ही है ना? अगर फील्ड है तो यहाँ पे अभी तो सारे डेटा इसमें, यहाँ पे जो इस बफर में डेटा आ रहा है सारा का सारा इस पोर्ट के लिए नहीं है, थोड़ी तवज्जो चाहिए। सारा का सारा लेट कर दिस इज पोर्ट नंबर 1 एंड दिस इज पोर्ट नंबर 10। तो इट मीन्स जो पीसी यहाँ पे है, क्या वो सिर्फ पोर्ट नंबर 10 के पीसी से बात करेगा? नहीं, वो पोर्ट नंबर 12 के पीसी से भी कर रहा होगा, वो पोर्ट नंबर 15 के पीसी से भी साइमल्टेनियसली कर रहा होगा। लेकिन अगर ये पहला पैकेट यहाँ पे रुक गया, जिसको जगह नहीं मिल रही, तो पिछले पैकेट के लिए जगह है जाने के लिए, लेकिन उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्यू में पहला बंदा, जब तक कि वो हल नहीं होगा उसका मसला, बाकी लोग, जैसे आप लेट करेंगे आप किसी भी क्यू में एयरपोर्ट में हैं, नाउ अगर पहला बंदा अपने उस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पास कहीं लंबा टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं, पिछले लोगों का कोई भी काम नहीं होता, सिर्फ उन्होंने स्टैंप लगानी होती है, लेकिन दे हैव टू वेट, दे हैव टू वेट। So that is the bad point about the port based memory. दूसरा एक जो डिसएडवांटेज इस पोर्ट बेस्ड मेमोरी का हो सकता है, वो ये है कि अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी दिस इज 48 पोर्ट स्विच, 48 पोर्ट स्विच, जिनमें से एज्यूम करें कि सिर्फ 10 पोर्ट यूज हो रही हैं, इसका मतलब है कि 38 पोर्ट्स आर फ्री, 34 ports are free, they are not being used, but definitely the buffer which is related to these, the buffer which is related to these 38 ports will be wasted, not being used, not being used। और इन 10 पोर्ट के ऊपर, इन 10 पोर्ट जो कि इन यूज हैं, 10 पोर्ट विच आर इन यूज, हो सकता है वहां पे वो जो बफर है वो कम पड़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि जो इस्तेमाल कर रहा है वो, उसको और चाहिए, और जिनकी 38 पोर्ट का बफर है वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा। तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ दी पोर्ट बेस्ड मेमोरी। इकरा को नहीं समझ आ रही? आ रही है? ना आ रही हो इकरा तो अपने साथ जुल्म खुद नहीं करना। ये जुल्म होता है कि आप कोई चीज समझ किसी भी स्टूडेंट के लिए, मैं जस्ट इकरा का इसलिए कि इकरा जूनियर है, तो एक चीज नहीं समझ आ रही और उसको वो गुजरने दो,
तो फिर कहाँ से सीखेंगे? इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला इस बात से एग्री करता है कि उसने तकरीबन 4 साल इस्लामिया कॉलेज में ही, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, लेकिन ऐसी चीजें टीचर ने नहीं टच की। इसका मतलब है कि क्या वो एमएस में टच करेगा? नहीं करेगा। बीएस में नहीं की तो एमएस में कहाँ करेगा? तो इसका मतलब कभी भी टच नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि लर्न एज मच एज पॉसिबल। तो नहीं समझ आ रही, क्वेश्चन करें, जैसे अभी यूनुस ने क्वेश्चन किए, शायद और अजलान ने किए। ऑल क्लियर, ऑल ग्रेट। ओके जनाब इसाम खान, हमने ये कहा कि अगर हर पोर्ट की अपनी अपनी इनपुट और आउटपुट मेमोरी हो, बफर हो, तो ठीक है। एक क्या होगा कि इसके जो भी इनपुट पे इसके आ रहा है वो इसके आउटपुट के जरिए इसके पास जाएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो मैंने दो ऑप्शन दी। एक तो ये कि अगर ये आउट बफर भरा हुआ है तो लाइन तो ये पीछे से नहीं दे सकता। जब नहीं दे सकता तो जो भी इसका एक पैकेट या फ्रेम यहां फंस गया, ये जब तक नहीं निकलेगा तो पिछले फ्रेम्स स्टक्ड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप एयरपोर्ट पे चले जाते हैं और आपसे पहले वाला बंदा, उसके लेट करें पासपोर्ट में कोई इशू है, उसके टिकट में कोई इशू है, और जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है वहां की वो उसके अब हर चीज को चेक कर रही है, इट माइट टेक हाफ एन आवर। अब हाफ एन आवर तक पिछले वाले बंदे का कोई काम नहीं है, जस्ट उसने सामने रखना है और ठप्पा लगना है, क्योंकि उसका लेट करें उसका पासपोर्ट ग्रीन है, सॉरी उसका पासपोर्ट जो है वो यूएस बेस्ड है या किसी यूरोपियन कंट्री का है, उसमें किसी ने नहीं देखना, बस मोहर लगानी है कि जी जाओ। उसके बाद कैनेडियन है, उसके बाद यूएस का वो है, लेकिन वो इट हैज टू बी वेट। तो ये पोर्ट बेस्ड मेमोरी का एक डिसएडवांटेज। दूसरा मैंने ये आपको बताया कि आपके स्विच में तो 48 पोर्ट हो सकती है, हो सकता है उनमें से सिर्फ 10 यूज हो रही हो, 38 यूज ही नहीं हो रही। तो उनका बफर को क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, दे आर वेस्टेड, हार्डवेयर बीइंग वेस्टेड इन अदर वर्ड्स। और वो भी कीमती हार्डवेयर, बिकॉज बफर इज ए फास्ट मेमोरी, यू आर वेस्टिंग इट। और उसकी वजह से बाकी जो 10 है उन पे लोड बढ़ रहा है, उन पे ट्रैफिक बहुत है, तो वहां पे उनकी उस बफर की कमी महसूस की जा रही है। और बाकियों के पास, जैसे एक घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बाकी घरों पे लट करेंगे, उनके पास इतना खाना है कि वो गिरा रहे हैं, जाया कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा तरीका नहीं हुआ। क्लियर हो गया? नाउ इज क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके। दूसरा तरीका जो है वो है शेयर्ड मेमोरी। सेकंड मेथड इज शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी का मीनिंग है कि हम हर एक पोर्ट को अलग अलग, अगर हम पोर्ट मेमोरी दें, पोर्ट बेस्ड मेमोरी दें, क्यों ना हम एक शेयर्ड मेमोरी बना दें इनके लिए और एक शेयर्ड मेमोरी बना दें आउट के लिए। इनके लिए भी शेयर्ड और आउट के लिए भी शेयर्ड। तो जितनी भी ट्रैफिक आ रही है किसी भी पोर्ट से, दैट विल बी स्टोर्ड इन दी, टेम्परली स्टोर्ड इन दी इनपुट। और फिर इस इनपुट से इट विल गो टू दी आउटपुट ऑफ दी अनदर वन। अब मिसाल के तौर पे, अगर लाजमी तौर पे ये मेमोरी तो बनाई जाएगी 48 पोर्ट्स के लिए, इसका मतलब है कि 48 पोर्ट्स के लिए। तो अगर इवन 10 पोर्ट भी आपकी फंक्शनल है तो दीज 10 पोर्ट के लिए सारी की सारी मेमोरी अवेलेबल बिकॉज़ इट इज शेयर्ड, क्योंकि दैट हैज बीन फॉर द 48 पोर्ट। तो 10 पोर्ट तो उसमें जबरदस्त एंजॉय करेंगे, वो तो उनको मेमोरी की कभी कोई कमी नहीं फील होगी। और अगर 48 के 48 भी आ जाए तो भाई सबके लिए उसके मुताबिक जितनी एक एक के लिए पोर्ट मेमोरी रखी गई थी 48 से मल्टीप्लाई हुई है, फिर भी इसको कोई मसला नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की मेमोरी को हम क्या कहते हैं? शेयर्ड मेमोरी। ये कह रहा है कि डिपॉजिट ऑल फ्रेम इनटू ए कॉमन मेमोरी शेयर्ड बाय ऑल द पोर्ट्स एंड द अमाउंट ऑफ बफर मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द पोर्ट इज। फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर हम ये इसमें अगर आपके 10 पोर्ट सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप इनके लिए ज्यादा एलोकेशन कर दें कि भाई मेरे पास ऐसे भी ज्यादा है। यू कैन फाइंड दैट मोर टू इट कि भाई यू शुड वर्क, यूज इट इन अ बेटर वे। क्लियर हो गया? तो दैट इज कॉल्ड दी शेयर्ड मेमोरी। ठीक हो गया? फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट वेरी ब्रीफ टॉपिक जिस पे आप ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं,
That is called the mode. अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन और सेटिंग तीन किस्म की मैंने आपको बताई थी. वन इज द सिंप्लेक्स, जो कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन एक है, इसलिए हमने उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि डुप्लेक्स सेटिंग क्या क्या हो सकती है. तो इट कैन बी सिंप्लेक्स, इट कैन बी हाफ डुप्लेक्स, और इट कैन बी फुल डुप्लेक्स, जिसको हम फुल डुप्लेक्स को हम नॉर्मली सिर्फ डुप्लेक्स भी कह देते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? सिंप्लेक्स का मतलब ये होता है कि ऑलवेज वन विल बी द सेंडर एंड टू विल बी ऑलवेज द रिसीवर. ऑलवेज का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया. इसका मतलब इट ऑलवेज विल बी रिसीविंग एंड नेवर विल बी रिस्पॉन्डिंग बैक. दिस विल नेवर हैपन. तो ये अगर सेंडिंग कर रहा है तो इट कैन नॉट रिसीव. इसके पास रिसीवर है ही नहीं, इसलिए आई पुट अक्रॉस देयर, और जहां पे पॉसिबल है वहां पे आई पुट ए टिक देयर. तो सच a communication is called simplex. So it means a single channel is required between the transmitter. It means now this is always a transmitter and this is always the receiver. आप कहेंगे ये कब होता है? And I can give you a very simple example of your TV. अगर मिसाल के तौर पे this is your TV station and here is your TV receiver, जो आपके घर में है, that is called receiver. तो that receiver always receive and the TV station always transmit. The reverse can never happen. इसी तरह the next example can be the radio station. Although nowadays we are far away from radio, but still radio is there. रेडियो में भी होता है कि the radio station always transmit music and other things, and we always right. Okay, so we were here और हमने कहा कि the two examples of the simplex is or simplex, the good examples are TV system as well as the radio. The next is half duplex. What it means? Always there can be two-way communication, yes, but not simultaneously. At the same time. Simultaneously means at the same time. आप कहेंगे इसकी भी एग्जांपल दो. तो one of the example is walkie-talkie. The other example can be police radio, the wireless police radio. There is also half duplex. इसका मतलब है कि जब, and the third very good example which you people doesn't recognize, that is your Wi-Fi, which I am using even now. That is again a half duplex mode. It means when my laptop is sending to the access router, so at that time access router is only receiving. So which means a channel is from L to AR. Similarly, the same channel is used by the AR to send to the access router to this point, but not simultaneously. So that such a communication is called half duplex. Then is the number 3, which we always
prefer or which is nice for us is the full duplex, in which between the source and the destination, there are not here it was a single channel. Here in case of this, the single channel was available between the source and destination in case of the half duplex. But here we have two channels, two separate channels, one for sending and one for receiving. So that's the reason the device source is transmitting as well as receiving simultaneously, and destination is also sending and receiving the simultaneously. Clear ho gaya? And such one is called, in like for example, if I'm connected to a Ethernet switch, that is a full duplex. If I'm using my mobile cellular phone, that is full duplex. I'm talking as well as listening. So this is called as the full duplex. Clear hogi meri baat? Then is the, as I said, that the every device has a NIC card. Now, because we are talking about the Ethernet NIC, now if it is a old legacy one, that can have a speed which is called just Ethernet. Ethernet have a speed of 10 megabit per second. Then came is the fast Ethernet, which is 100 megabit per second. Then is the gigabit Ethernet, which is 1 gigabit per second or 1000 megabit per second. Then is the 10 gig, which is 10,000 megabit per second. So they are the speed. Clear? Let's see this as well. Let's see this as well. Okay. So before going there, I want to start by packet tracer. No packet tracer. Okay. Packet tracer. Start. Okay. So I place here a switch here, like this one, and let this switch to boot. तो अगर हम इसको क्लिक करें और CLI पे जाएं तो आपको नजर आ रहा है कि ये हैश साइंस बता रहे हैं कि ये बूट कर रहा है, क्योंकि सिमुलेशन है, जल्दी से ये बूट कर गया. नाइस जी. अब हम इसको प्रेस करते हैं. वी आर हियर एंड देन मोहम्मद इसाम. हम यहाँ पे करते हैं. Okay. So, ladies and gentlemen, Mushtaq Ahmed Bangash is also here. That's good. Okay. So, ladies and gentlemen, but the rest attendance is very, very weak. Very, very weak. And yeah. So, ladies and gentlemen, okay, what I want to show you, that if I show you here, show interfaces, and let it be, I want to show you the first interface, fast Ethernet 0/1. Sorry, 0/1. तो ये देखें, ये बता रहा है कि दिस इंटरफेस फास्ट Ethernet 0/1. अगर आप इसका डुप्लेक्स मोड देखें तो किस मोड में, हाफ डुप्लेक्स, और इसकी स्पीड कितनी है, 100 मेगाबिट पर सेकेंड. लेकिन अगर मैं यहां पे इसी इंटरफेस के ऊपर एक डिवाइस लगा दूं, आई प्लेस 2 डिवाइसेस हियर फॉर एग्जांपल. These are my end devices. I place a PC here and I place a laptop here.
or I connect them with a straight cable. So ladies and gentlemen, fast Ethernet 0 is connected, let it be to the first interface, and the laptop is connected to the last interface of the same switch. लाजमी नहीं, जस्ट आई, चले मैं इसको गीगाबिट के साथ कनेक्ट करता हूं, ठीक है। और this orange color bubbles are showing that some processing is done at the back end, जिसको आप जो नेक्स्ट कोर्स आप में से जो लेगा स्विचिंग राउटिंग का, वहां पे हम इसको डिटेल में देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग हियर, एंड विल सी दैट बेसिकली एल्गोरिथम व्हिच इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल दैट इज रनिंग। तो आप देख रहे हैं कि कुछ देर में ये दोनों ही ग्रीन हो जाएंगे, लेकिन सिमुलेशन में अगर आप देखें दोनों ग्रीन हो गए। अब मैं इसी पहले मैं इसके आपको ये भी विजुअलाइज कराता हूँ। ओपन में जाके रेफरेंसेस पे जाके, सॉरी ऑप्शंस में जाके, पोर्ट लेबल्स पहले से कहता है, मैं दिखा रहा हूं, हाँ दिखा रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो टू द स्विच एंड आई गो टू दी शो इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट, पहली इंटरफेस 0/1। तो चेक करें जी, देखें इट इज नाउ फुल डुप्लेक्स, बाय डिफॉल्ट इट इज full duplex, and at what speed? Because it is a fast Ethernet port, it is at 100 megabit per second. So this one is the speed or capacity, and this one is the duplex mode. Make sense? इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूं फास्ट इथरनेट की बजाय गीगाबिट 0/1, इसको भी देखें तो ये भी फुल डुप्लेक्स में है, और ये भी जा सकता है ये अप टू 1 गीग, लेकिन ये किस पे है? वजह क्या है? ये जो स्विच है, ये जो है यहाँ पे जो इथरनेट स्विच वो लगा हुआ है, ये गीग बर्दाश्त, इसमें गीग की फैसिलिटी नहीं है। ये क्यों? आपका सवाल ये होना चाहिए, ओके। तो आपका जवाब क्या, क्वेश्चन क्या हो सकता है मुझ पे? क्वेश्चन ये हो सकता है कि जनाब ये तो 1 गीग का पोर्ट है, नजर आ रहा है कि गीगाबिट पोर्ट है, व्हाई इट इज 100 मेगाबिट पर सेकेंड? द रीजन इज दैट लैपटॉप का जो एनआईसी कार्ड है, लैपटॉप का जो एनआईसी कार्ड है, दैट इज सपोर्टिंग फॉर एग्जांपल 100 मैग। तो लाइन तो फिर दूसरे साइड को भी 100 मैग पे ही बात करनी है। कुछ बात समझ आई? क्यों नहीं? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपने कहा क्यों है, आप कहते हैं कि इसको फास्ट इंटरनेट पे कनेक्ट कर दी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये हमारा सर्वर है और हम समझते हैं कि भाई इस पे लोड बहुत ज्यादा है, तो मिसाल के तौर पे इफ आई शो यू माइन, यहाँ पे आप चेक कर लें, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहाँ पे मेरे इसको चेक कर लें, तो एंड आई गिव हियर आईपी कॉन्फ़िग, चलिए सिर्फ आईपी कॉन्फ़िग ही दे देते हैं। तो इसके जो मेरा ईथरनेट कार्ड लगा हुआ है हम उसको देखना चाहते हैं। ये देखिए जी, ये है मेरा मैं ईथरनेट कार्ड, और ये कौन सा है? गीगाबिट ईथरनेट कंट्रोलर है इसमें। अब जो यहाँ पे सिमुलेशन में लगाया गया है वो 10 मेगाबिट पर सेकंड, 100 मेगा है। तो अगर ये 100 है तो फिर इसको भी 100 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे ये इसको 1 गीग पे भेजे, स्विच इसको 1 गीग पे भेजे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो गीग है, तो क्या ये 1 गीग पे रिसीव कर सकता है? नहीं कर सकता। ये तो मैक्सिमम 100 मैग पे रिसीव कर सकता है, और लाजमी तौर पे ये 1 गीग पे भेज भी नहीं सकता, ये 1 गीग पे भेज भी नहीं सकता ताकि उसको मिले, ये तो 100 मैग पे ही भेजेगा। इसका मतलब ये रिसीव भी 100 पे करता है और ये ट्रांसमिट भी 100 पे करता है, तो लाजमी तौर पे इसको भी 100 पे अपने आप को सिंक करना पड़ेगा। बात समझ आई? उस क्योंकि उसका कोई कनेक्टिविटी ही नहीं थी। कनेक्टिविटी तो होती है जब, तो फिर डुप्लेक्स मोड डेवलप होता है ना, फिर ये आपस में नेगोशिएट करते हैं कि भाई किस मोड में जाना है।
क्लियर हो गया? मिसाल के तौर पे अगर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी इस मोड पे चला जाऊं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और फिर इसको मैं दे दूं, इसकी इंटरफेस पे चला जाता हूं, इंटरफेस लेट इट बी गीगा, सॉरी, जिसमें मर्जी, फास्ट इथरनेट 0/1, और इसको मैं देता हूं स्पीड। क्या दिया? स्पीड। क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो देखिए, ये पूछ रहा है मुझसे, क्या इसको 10 पे रखना चाहते हो, क्या इसको 100 पे रखना, जो क्योंकि फास्ट इंटरनेट है, ये 100 तक जा सकता है। गीक उसने माना ही नहीं है, और साथ कहता है नहीं, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं इस पे खुश हूं ऑटो, कि अगले साइड जो भी होगा उसके मुताबिक मैं अपने आप को एडजस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको कहता नो जेंटलमैन बी ऑन 10, और कर दिया, अब ये 10 पे ही रहेगा, या 100 पे, या गीक पे, या ऑटो पे जाएगा ही। इसी तरह अगर मैं इसको कहूं डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स में कौन कौन से मोड है, फिर ऑटो, और फिर है फुल एंड हाफ। लेट करें, या खुद तो ये फुल पे था बाय डिफॉल्ट, अभी आपने देखा, लेकिन अगर मैं इसको हाफ कह देता हूं, बाय जोर पे जरबी वाला काम है, और अब मैं यहां से एग्जिट एंड करके और शो करवाना चाहूँ, शो इंटरफेसेस, और इंटरफेस में फास्ट इतने 0/1, और फिर दूं, तो अभी आप यहाँ पे तवज्जो दे सकते हैं कि नहीं जी, ये तो हाफ डुप्लेक्स में ही है, और ये 10 मेगाबिट पर सेकंड पे, क्योंकि वहां मैंने किया है, मैंने किया है, तो फिर तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की बात तो माननी पड़ेगी। आल्दो यूनुस कहता है, यूसुफ कहता है क्यों भाई, रीजन नहीं है, मे बी मेरी जो डिवाइस है दूसरे एंड पे मैं समझता हूं कि भाई यहाँ पे स्लो डेटा जाना चाहिए फॉर एनी रीजन, लेकिन फैसिलिटी आपने देख ली, दैट्स ग्रेट। फिर जनाब हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी, तो ये आपने स्पीड और को ना सिर्फ आपने थ्योरेटिकली देखा, बल्कि आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स और ऑटो नेगोशिएट का मतलब क्या है। जो ऑटो का लफ्ज लिखा हुआ आपको नजर आ रहा था ना, इसका मतलब होता है ऑटो नेगोशिएट, जिसमें मतलब आपस में नेगोशिएट कर लो, अगर एक तरफ फुल है तो दूसरा भी फुल हो जाए, अगर एक तरफ हाफ है तो दूसरी तरफ भी हाफ हो जाए। क्लियर? इस तरह अगर एक 100 पे है तो दूसरा भी 100 पे आ जाए, अगर एक 10 पे है तो दूसरा भी 10 पे चला जाए। अब देखिए यहाँ पे स्पीड इवन 1 गीग भी अवेलेबल है, यहाँ है ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता कि ये दोनों डिवाइसेस 1000 मेगाबिट पर सेकंड पे बात करें। क्लियर एवरीवन? ओके, now come to the last topic of this chapter, which is called AutoMDIX, which is called AutoMDIX. AutoMDIX, ऑटो तो आप समझते हैं, ऑटोमेटिक। तो ये मेथड क्या है कि आपको हमने बताया हुआ है कि भाई जब भी आपकी सिमिलर डिवाइसेस होंगी, जैसे स्विच टू स्विच या राउटर टू राउटर, यू विल बी यूजिंग द क्रॉस। Okay. So what mean by this auto MDIX? So as I told you earlier, okay, whenever the general rule is that whenever you want to connect similar devices, like a switch to a switch, switch to a switch, so you need a crossover cable. Whenever there is a similar devices, you need a crossover cable. And whenever you want to connect different devices, like a switch with the router, you need a cross cable. Sorry, you need a straight cable. Similarly, if you have your PC, if I ask you, if you have a PC and you are connected with a switch, which type of cable you will prefer? Shabash. Straight, because they are two different devices. One is a layer 2 device and one is a end device. One is intermediate device and another is the end device. So you need a straight cable here, straight through cable here. So again, it is that the general rule, which I think still we should follow. And if you look at here, again, as I said earlier, that you have a PC and you are connected it to a switch, which is normally we do. So we need a straight cable.
Similarly, if you are connecting a device over with a router, that is a something to remember. Still, you need a crossover cable. Mostly, we don't connect our device with the piece with the router directly. Okay, so this is the general rule. But nowadays, if these ports, these switches, these routers are newer devices, then a feature implemented here which is called auto MDIX. Auto MDIX, which means if you don't follow the rule, still it will work. यानी कि एक मिसाल तो स्विच को मैंने स्ट्रेट केबल से मिला दिया, या मैंने स्विच को पीसी के साथ एक क्रॉस केबल से मिला दिया, रूल तो उसको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑटो एमडीएक्स फीचर ये करता है कि नहीं, वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है और उससे आपकी कम्युनिकेशन करवा देता है। तो है तो अच्छा फीचर, लेकिन मैंने आपको फिर भी ये कहूंगा कि ऑलवेज फॉलो द रूल। उसकी वजह ये है कि हो सकता है ये स्विच आपका नया हो, न्यू स्विच है, न्यू वर्जन का है, लेकिन ये वाला आपका दूसरे एंड पे कहीं ओल्ड लगा हुआ है, आपको क्या पता। तो आपने तो अपनी तरफ से कहा जी मैं गलत लगा देता हूँ, स्ट्रेट केबल लगाता हूँ, ऑटो एमडीएक्स न्यू में तो है ना, ओल्ड में तो नहीं है। तो मोस्टली लोगों को इससे मसला होता है कि जी वो ऑटो एमडीएक्स का सहारा लेते हैं, और बात वक्त ये होता है कि ऑटो एमडीएक्स डिसेबल है। हो सकता है कि ऑटो एमडीएक्स फीचर डिसेबल है, तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही? तो इसलिए अच्छी बात यह है कि आप जो रूल आपको बताए गए कि डिसिमिलर डिवाइसेस को इस्तेमाल करें स्ट्रेट केबल, और सिमिलर हैं तो इस्तेमाल करें क्रॉस केबल, एक्सेप्ट योर पीसी विद राउटर। ऑल्दो मैंने आपको कहा कि इतने मोस्टली हम नहीं कर सकते कि एक राउटर को हम एक पीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, वो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ होकर स्विच से एक उस पर कनेक्ट हो जाता है और मल्टी डिवाइसेस को रूटिंग कर रहा होता। ओके, देन इज दी ओके, सो यहाँ पे ये हमने कहा है कि जी हम यहाँ पे अगर कमांड देते हैं नो एमडीआईएक्स ऑटो, अगर हम कमांड दे देते हैं नो एमडीआईएक्स का वो, तो खत्म हो गया। और अगर हम दोबारा उसको इनेबल करना चाहते हैं तो एमडीआईएक्स ऑटो, तो हो सकता है आपके किसी सीनियर ने कमांड दे दी और नो एमडीआईएक्स ऑटो, तो अब ये फीचर है ही नहीं, चाहे वो स्विच नया है कि पुराना है। इसलिए मत रूल्स को मत वाइल, फर्क क्या पड़ता है? क्वेश्चन ये पड़ता है कि भाई अगर क्या वो केबल जो है क्रॉस महंगी है या स्ट्रेट सस्ती है, सिर्फ बनाने का तरीका डिफरेंट है। तो हम खुद बनाते हैं, हमें कोई किसी ने बना के तो नहीं देनी, तो देयर इज नो इशू। एंड दिस ऑटो एमडीएक्स स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस को क्रॉस ओवर कर दे, खुद ही ऑटोमेटिकली मीडियम को इंटरफेस को क्रॉस कर जाए, यानी चेंज कर दे उसके मुताबिक। बट इट इज अ फीचर, आपकी मर्जी, यू गो फॉर इट और नॉट। ओके, गुड क्वेश्चन इज फ्रॉम अजलान अजलान शाह। वो कहता है कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम आ, अगर हमने मिसाल के तौर पे पीसी को स्विच से कनेक्ट करना होता है, हमें पीसी को स्विच से कनेक्ट करना होता है, तो हम कहते हैं कि जी ऑलवेज यूज स्ट्रेट केबल। क्यों? वजह यह है कि जेंटलमैन, जब स्ट्रेट केबल बनाते हो तो आप मखसूस केबल्स को, जिसमें 1 2 3 6 है, वो आप केबल पार्ट 1 2 3 6, तो आप इन पेयर्स को बता देते हो कि जी 1 2 पेयर पे ऊपर मिसाल के तौर पे मेरा सेंडिंग होगी और 3 6 पे मेरी रिसीविंग होगी। तो इसी तरह अगले तरफ भी स्विच के ऊपर आप इसी तरह कर रहे होते हो कि यहाँ के 1 2 को यहाँ की 3 6 के साथ आप ज्वाइन कर रहे होते हो।
और यहाँ के 3 6 को इधर के 1 2 के साथ कर रहे होते हो। तो ये लॉजिक है कि भाई आपके ट्रांसमिट और रिसीव जो आप डिफरेंट डिवाइसेस करते हो तो इस तरह चलता है। लेकिन जब क्रॉस केबल इस्तेमाल कर रहे होते हो, सिमिलर डिवाइसेस होती हैं, तो उनमें लाजमी तौर पे स्विच विद स्विच है, मिसाल के तौर पे, या पीसी विद पीसी है। ये बात तो इसने लिखी नहीं थी, लेकिन मैं भी लिख देता हूँ, दिस इज वेरी गुड, कि हम बाज़ औक़ात पीसी को पीसी के जरिए थ्रू एक क्रॉस केबल कनेक्ट करते हैं, क्रॉस केबल कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें कोई मिसाल तो पे अपनी हार्ड डिस्क है यहाँ की, वो हार्ड डिस्क हमने यहाँ पे शिफ्ट करनी है, उसका डेटा, हार्ड डिस्क नहीं, उसका डेटा। तो अगर हम यूएसबी से लगे रहे तो इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम लगाते हैं क्रॉस केबल और डायरेक्टली ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका लाजमी तौर पे सिमिलर डिवाइसेस हैं तो उनकी सेटिंग्स डिफरेंट है। तो उसके लिए हम इसको अभी हमारे मतलब अगले वीक में एग्जाम्स है, एग्जाम खत्म हो जाए तो आप लोग यहाँ पे जो लोग आ सकते हैं दैट विल बी ग्रेट। वो यहाँ पे ये स्ट्रेट केबल भी और क्रॉस केबल खुद अपने हाथों से बनाएंगे, और हम उनको बताएंगे कि जी ये आपने ये जो पेयर्स हैं इसको किस तरह, यानी क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए जो कि आपने पढ़ा हुआ है कि आपकी यूटीपी केबल में या ट्विस्टेड पेयर केबल में 4 पेयर्स हैं। तो इन 4 पेयर्स यानी 8 वायर्स हैं। इस 8 वायर को किस तरह अरेंज करना है, क्योंकि इनके डिफरेंट कलर्स हैं, कलर कोडेड है। तो इन कलर्स वाइज इसको किस तरह अरेंज करना है, और उससे फिर स्ट्रेट कैसे बनती है और क्रॉस कैसे बनती है, ये आप बनाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? Okay. So, ladies and gentlemen, there is again a question, probably clear. Okay, nice. Okay. तो जनाब इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर के खत्म होने में दो खुशियां हैं। एक खुशी तो ये है जो कि आपको पता है कि अगला चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 8। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि विद मैंने आगाज किया विद फिजिकल लेयर विच यू कॉल्ड एज लेयर 1, उसके बाद मैंने डेटा लिंक लेयर की बात की, और एज एन एग्जांपल डेटा लिंक लेयर के ऊपर मैंने ईथरनेट की एग्जांपल, ईथरनेट इज लेयर 2 टेक्नोलॉजी। तो हमने डेटा लिंक लेयर में इस चैप्टर नंबर 7 में हमने ईथरनेट को एज ए डेटा लिंक लेयर की एग्जांपल के तौर पे, एक प्रोमिनेंट एग्जांपल के तौर पे स्टडी की। अब लाजमी तौर पे अगर ये लेयर 2 है तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इकरा लेयर 2 के ऊपर कौन सी लेयर होगी? लेयर 3, यानी कि नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर। तो इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 8 इज अबाउट दी नेटवर्क। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे ख्याल के मुताबिक इट शुड बी ईथरनेट के बाद नेटवर्क। तो एक तो हमें एक खुशी कि हम एक नई लेयर का को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। दूसरी खुशी ये कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने चैप्टर नंबर 4 5 6 7 पढ़ लिया है। तो सिस्टम कहता है कि अगर ये 4 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं तो फिर आपको एग्जाम देना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोग इन चैप्टर्स को, यानी कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 आपको आता है ना भी करें तो कोई जरूरत नहीं है, चैप्टर 6 7 को करके, ताकि मैं ये एग्जाम आप लोगों के लिए एक्टिवेट करूं। अगर कोई लोग नए हैं तो मैं उनके लिए कि आपका ये एग्जाम कैसा होगा, तो मेरा जवाब है यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब वो मल्टीपल चॉइस में एक चॉइस भी हो सकती है, और मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। यानी वो आपको, लेकिन वो आपको बताएगा कि भाई इस सवाल के 2 टिक्स करो, 2 करो, 3 करो। इसके अलावा थर्ड क्या होगा, हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने अभी आपको कुछ काम कराया तो मैंने आपको लेकिन ये बड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी पैकेट ट्रेसर का कोई टास्क आपको दे दे। मिसाल के तौर भी आपने देखा कि आपने चेक किया कि भाई इसकी स्पीड कितनी है, आपने चेक किया कि इसका
मोड, जो डुप्लेक्स मोड है वो कौन सा है, या इसका मैक एड्रेस कौन सा है। तो हमने ये ऐसी चीजें करना हमें आती हैं। तो उस तरह के कोई क्वेश्चन आपको पैकेट ट्रेसर के प्रैक्टिकल टास्क को दे दे कि यहां से चेक करो, अपनी पैकेट ट्रेसर से नहीं, वहीं पे पैकेट ट्रेसर अवेलेबल होगा एग्जाम में, तो आप बस उसको वो क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा अपनी विंडो में, और आपको क्वेश्चन करेगा कि ये काम यहाँ करके मुझे बताओ कि ये क्या है। तो आप देख के बता देंगे, और नीचे आंसर होंगे मल्टीपल, उसमें से एक या मल्टीपल चूज कर लेंगे। क्लियर। कुछ केसेस में ये भी होता है कि मैचिंग होती है। मैचिंग का मतलब है कि इधर उसने कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, और इधर उसकी, इधर मिसाल के तौर पे मैं मुख्तलिफ कलर ले लेता हूं, इधर उसके आंसर्स होते हैं, लेकिन इसके सामने ही मिसाल तो इसका आंसर हो सकता है ये हो। तो आप इसको पहले क्लिक करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, और इसके दरम्यान में लाइन बन जाएगी। इसी तरह मिसाल तो मैं नंबर 2 का जो है वो इस नंबर 4 के साथ है, तो इस 2 को क्लिक करेंगे, आप 4 को क्लिक करेंगे, इन दोनों के दरम्यान में लाइन बन जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके, लेकिन यहां पे मेजॉरिटी क्वेश्चन किसके होंगे, लेयर 2 के, क्योंकि ये भी लेयर 2 है, ये भी लेयर 2, और कुछ लेयर 1। तो इसका मतलब आप लेयर 1 और लेयर 2 को टाइम दें, और फिर इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। आपको आपके ग्रुप के अंदर इसकी डेडलाइन, और डेडलाइन ये याद रखें, डेडलाइन फर्म है। क्यों फर्म है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। ये मैंने अभी देख रहा हूं कि एक स्टूडेंट ने, और आप मुझे हेल्प करें कि मैं इसमें इससे क्या कर सकता हूं। ये एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, कहाँ है ये मैसेज, ये अबूजर वजीर ITN बैच 13। बैच 13 मैंने पढ़ाया था 2025 में, मिड ऑफ 2025। और ये बंदा कह रहा है कि जी मेरी लाइट का मसला था, इसको साल के बाद याद आ गया कि ड्यू टू दी नेटवर्क इशू आई वाज अनएबल टू टेक द माय प्रीवियस एग्जाम ऑन 22 June। I kindly request you to reschedule the exam so I can participate it in। Thank you। तो मुझे ये लगता है कि मुझसे दो, क्योंकि बैच 13 ये बताता है कि ये इस साल का स्टूडेंट नहीं है, और अगर मैं ये करना भी चाहूं, चले मैं कहता हूं मैं करना चाहता हूं, तो आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करेंगे, और इस स्टूडेंट को भी बताएंगे कि स्टूडेंट साहब ये देखो, ये जी मैं इसको कर देता हूं बंद, ये देखिए, इसमें आपको ये बैच 13 का कोई कोर्स नजर आता है, देख लें कहीं का। आप ये बैच 14 है, ये इंटरप्राइज है, ये टेक्निकल ब्ला ब्ला, साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स ब्ला ब्ला, इसमें आपको नजर आ रहा है कि मैं ये कोर्स इसको इसके लिए खोल लूं, है ही नहीं, तो मैं कहां से उसका एग्जाम एक्टिवेट करूं। तो इसलिए मेरी सबको इंस्ट्रक्शन है कि जो डेडलाइन आपको देता हूं उस डेडलाइन को फॉलो, और जूं जूं टाइम गुजरता जाता है, तो जो कोर्सेज हमारे पास होते हैं, सिस्को आर्म से वो कोर्सेज है जैसे आपको नजर आ रहा है उसने उठा ली, सिर्फ जो कोर्सेज एक्टिव होते हैं वो रहते हैं, बाकी कोर्सेज को हटा दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो इसलिए ऐसी रिक्वेस्ट ना करें जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर। तो क्योंकि अभी 15 मिनट तो हैं, लेकिन स्टूडेंट की तादाद भी कम है, 7 लोग हैं सिर्फ, और कुछ ऑनलाइन है, कुछ फिजिकल भी कम है। तो आई अंडरस्टैंड द रीजन, क्योंकि स्पेशली हमारे जो UT के स्टूडेंट हैं उनके मंडे से पेपर शुरू हो रहे हैं एंड दे आर नॉट हियर। तो चले हम अगला चैप्टर कल की क्लास में ही, विच इज चैप्टर नंबर 8, मैंने आपको बताया नेटवर्क लेयर 3, उसको हम कल की क्लास में इंशाल्लाह शुरू। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एजी साहब अपना नाम तो बता दो। अजलान शाह, जरवा। No, sir, all good here. That's great. So if you're all good at your end, your understanding, then it's great for me as well. Thank you very much. See you inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz.